एक गहरी सांस लेते हुए, एक गहरी सांस अंदर और अपने आप को यहाँ पर ब्रिंग योर सेल्फ टू द हियर एंड द नाउ। अभी जो है वहाँ तक लाइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे।
ये गुजराती में एक स्तवन है। घेरी वळ्या छे मुझने मारा, घेरी वळ्या छे मुझने मारा, पापो ना परछाया रे, हे त्रिशला ना जाया, मांगू तारी माया, हे त्रिशला ना जाया. Trishla is the name of Lord Mahavir Swami's mother. He Trishla na jaya, mangu tari maya. Geri valya che mujhne mara, papo na parchaya re. हे त्रिशला ना जाया, मांगू तारी माया. बाकुळाना भोजन लईने, चंदन बाळा तारी तमे, चंदन बाळा तारी. चंड कोशिना झेर उतारी, एने लिधो उगारी प्रभु, एने लिधो उगारी. रोहिणी जेवा चोर लुटारा, रोहिणी जेवा चोर लुटारा, तुझ पंथे पलटाया रे, हे त्रिशला ना जाया, मांगू तारी माया. हे त्रिशला ना जाया, मांगू तारी माया, मांगू तारी माया, मांगू तारी माया. So there are some beautiful stories which are captured in this particular जो स्तवन जैन स्तवन हमने गाया उसमें. I had spoken about it once before, but a lot of people may not have heard. So Mahavir Bhagwan, who is the last Tirthankar, the latest, the last Tirthankar of the 24, who spread Jainism in different parts of the world, especially around in India. But his life and his journey has many wonderful stories of his compassion, his lovingness, his okayness, his remembering who he really is and operating out of that. So two stories are there in that first antra that we sang. The Bakulana Bhojan Laine Chandan Bala Tari. So Chandan Bala was a young orphan girl. तो उसको महावीर स्वामी ने, how she was saved meaning emancipated meaning enlightened, meaning given the knowledge, given the path, given the understanding, that is, which is ultimately the final saving that there is remembering who you really are, that knowledge. But so one of the penance or tapasya which Mahavir Swami used to undertake is fasting for many days.
And rather than placing a time limit on the fast, there were certain conditions he would make, that if when these particular set of conditions get met, only then I will break my fast. And that could happen in 1 day, it could happen in 10 days, it could happen in 2 months, it could happen in just 1 sec. So um, so when certain conditions are met, only then he would break his fast. That was his vow. So it could take any amount of time, any short or long time. So उसको अभिग्रह कहते हैं, अभिग्रह। अभिग्रह यानी ऐसी एक डिसीशन या ऐसी एक प्रतिज्ञा, उतनी घोर प्रतिज्ञा जब लेता है कोई, तो उसको वो प्रतिज्ञा को अभिग्रह कहते हैं। तो बहुत अलग अलग अभिग्रह लेते थे, लेकिन उन्होंने एक बार ऐसा एक अभिग्रह लिया था कि मैं तभी, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी कि आई हैव, जो व्हेन आई एम ऑफर्ड फूड बाय अ वुमन who is an orphan, only then I will break my fast. Not only that, she must not have any hair. She must not be inside the house or outside the house. And there were 2, 3, 4 more conditions like this, which is like, and it was days and days and days that he was on fast and going. So this Chandan Bala was an orphan girl who was adopted by this somewhat rich merchant, and but she was a young and pretty woman, and the merchant cared for her, but the merchant's wife was very jealous that my husband is caring for this orphan daughter, and so she was jealous. So one day when he was out away on business, one of the other conditions was that she must have chains on her arms and legs. On her hands and legs must be in chains. She must not have any hair. She must be not inside the house, not outside the house. She must have been fasting herself for 3 days. It was like an unbelievable combination of conditions which you cannot imagine when this will ever get met. Anyway, so she was, the woman, when the merchant went away on a business trip, the woman was very angry with this girl, and especially she had very beautiful long hair. So in a fit of rage, she just chopped off her hair and put her away with the cows in the cow shed, shackled with chains, hands and legs, and just left her there. And 3 days passed, and also, the condition was that the food must be not human food but fodder, things that you feed a cow, that must be offered to me, only then I will break the fast. And so Mahavir was going around asking for food, and of course these conditions it's such a rare combination of how we can do that, so it wasn't happening. And then and so everyone in the town heard that this
saintly person is on this very, very long fast, and he's going around asking for alms, and nobody's able to satisfy his conditions. And somehow the Chandan Bala, this lady also heard about it, and so there was a knock on their door, and she said that and he heard, whatever the Mahavir Swami said, Bhiksham Dehi or whatever. And she said, oh, I must offer him whatever I have, even though I have not eaten, but I must offer him something. So what was there was only a fodder for the cows. Bakula, it's called bakula. It's just balls of, oat or something like that. Very raw, natural food, but only for the cows usually. So this is all she had. And she goes to the door and offers it, opens the door and offers it. And Mahavir Swami looks at her and says, yes, so many of my conditions are being satisfied. It is I know she's an orphan girl. She is been not eating for several days. Her hair is not there. And she's holding this bakula, which is also acceptable. But she was standing just inside the door. And of course, one of the conditions of the Abhigra is you don't tell what those conditions are to anyone, right? So nobody knew what these conditions were. So she offers it, and he looks, and it's almost everything is done except she's inside the doorway. And so he turns and starts to walk away. and she has chains on her legs, but she's so, has so much compassion for this saint and wants to give him this food. And so she, in spite of the chains, takes one step out of the door to follow him. She has tears in her eyes and goes out with that one step. And with that one step, that last condition, neither inside nor outside, also got met. She's right at the doorway, not inside the house, not outside the house. And he accepts the alms. And of course, because it was such an auspicious fast and for such blessings from this great soul, that she was freed from all her bonds. And the merchant arrives and takes care of her, and she actually joins his Sangh later on and becomes herself a saint. So Chandan Bala Tari, that's the story of Chandan Bala. The second story was about Chandakoshina Jher Utari Ene Lidho Ugari. So Chandakoshi was a serpent, a very, very poisonous cobra. तो उसके भी जहर उतार कर उसको भी तारा, उसको भी पार उतारा. So the story here is this serpent was actually a very, very dangerous, extremely dangerous and extremely powerful and extremely vicious. Nobody could cross that part of the jungle where this serpent lived without getting bitten. And most of them would just die if they were bitten by this extremely poisonous snake. So this story I remembered a few days ago because I remember a few days back when we were sharing about the path, how simple, ultimately the path is very simple. It's very easy to understand and follow and learn. I am starting with, I am not my thoughts, I'm not my body, I'm not the circumstances of my life, I'm not my my feelings. Who I am is beyond that. Step number one. Step number two, who I am, if I'm not there, if I let go of everything that I can possibly let go of, everything that I can possibly let go of, I let it go. मैं क्या त्याग कर सकता हूँ? मेरा धन, मेरी
मेरी दौलत, मेरे रिश्ते, मेरे दोस्त, मेरा ये शरीर, मेरा ज्ञान, मेरी टैलेंट, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ जो मैं त्याग कर सकता हूं, वो त्याग करने के बाद हम वहां पहुंच जाते हैं जिसका हम त्याग नहीं कर सकते, जो हम असल में है। दिस अवेयरनेस, this consciousness cannot be, is not something we can give up, because that is all there is, and that is what you are. So when you give everything that can be dropped, when you drop, what is remaining is that, is who you are. Your health, your good health or not so good health, your wealth or not so much wealth, whatever it is, you can drop it and see what is left. You come to awareness, and this consciousness which I am, it is just you. It is everywhere. It is in everything. It is you. It is the core of you, the essence of you. उसको छोड़ना या उसको त्यागना नामुमकिन है, क्योंकि आप वो है। क्योंकि उसे त्यागने के लिए कोई चाहिए जो त्यागेगा। अभी कोई बचा ही नहीं, वही है आप। और उसके गुण अगर हम समझते हैं तो देखते हैं कि विशाल है, करुणामय है, प्रेमल है, सत्य है, सुंदर है, विशाल है, असीम है, तो ओपन है, एक्सेप्टिंग है, लविंग है। सो इन नोइंग ऑल ऑफ दिस, ये जो गुण है, आत्मगुण ज्ञान कहते हैं ये स्टेप को। हमने ये नाम दिया है आत्मगुण ज्ञान। पहला जो स्टेप है वो नेति नेति का स्टेप है, जिसमें हम जो भी छोड़ सकते हैं छोड़ देते हैं, और जहां पहुंच जाते हैं उसको देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। वो नेक्स्ट स्टेप है आत्मगुण ज्ञान। इसके गुण क्या है उसको हम समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, और समझते हैं कि ये गुण को हमें पाना नहीं है, यही हमारे गुण है ऑलरेडी, यही हमारा सत्य है, यही हम है। इसके लिए हमें ना कोई चेष्टा करनी है, ना कोई प्रयत्न करना है, ना कुछ, ना कहीं जाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ चाहिए, हम ऑलरेडी है वो। तो ये सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप ये है कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारे अनुभव, ये जो हमारे लोग हैं लाइफ में, ये जो हमारी परिस्थितियां हैं, उसमें ये गुण कितने हम ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इन गुणों को हमारे इंटरेक्शन में, हमारे लाइफ में, हमारे शब्दों में, हमारे कार्य में, हमारे शरीर में, हमारे व्यवहार में, वो गुण कितने हम ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ला सकते हैं, ये थर्ड स्टेप। तो और ये थर्ड स्टेप जानने के बाद जितना हम गहराई से समझते हैं आत्मगुण को, और जितनी आसानी से हम याद कर पाते हैं, याद रख पाते हैं चुनौतियों के वक्त में। जैसे नीलिमा जी अभी अभी कोविड में से गुजरी, तभी भी उनको हॉस्पिटल के बेड पर भी उनको याद आया था कि ये तो मेरा शरीर है यार, मैं क्यों परेशान हूं। एंड शी वॉज सेलिंग, शी सेल्ड थ्रू द होल एक्सपीरियंस वेरी वेरी ब्यूटिफुली। सो दैट ये चैलेंजिंग सिचुएशंस में कैसे हम याद रखें, कोई हमें परेशान कर रहा है तभी हम कैसे इसको याद कर सकते हैं, कोई हमें नापसंद चीजें हो रही है उस परिस्थिति में कैसे हम याद कर सकते हैं, नापसंद परिस्थिति या नापसंद व्यक्ति या नापसंद वस्तु हमारे लाइफ में जब सामने आती है तभी हम कैसे याद कर सकते हैं। और उसके ऑपोजिट विपरीत यह भी है कि जब अच्छी चीजें हैं, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग ब्यूटिफुल, हाउ कैन आई एड माई ब्यूटी, दैट इनर ब्यूटी दैट आई एम, वो मैं कैसे इसमें, whether it's a song you are singing or a business you are doing or you are uh, anything, or you're making a meal, or or talking to a friend on the phone, which is not unpleasant, आपको अच्छा लगता है बात करना, तो उसमें भी मैं कैसे ये आत्मगुण ज्ञान जो मेरा है वो भी मैं कैसे इसमें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मिला सकता हूँ। तो तभी मैंने जब ये बात समझाई थी, अभी वापस दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बात समझना बहुत आसान है, लेकिन ये दोहराना और समझना गहराई से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो तभी सोनल जी ने ये प्रश्न किया था। तो सर आप आपने ये सिंपल में तो बता दिया, लेकिन और सिंपल करिए इसको। इसको और सिंपल करना है। तो तभी मैंने कहा था कि और सिंपल अगर करना है तो एक ही प्रश्न अपने आप से पूछिए कि क्या मैं हूं? आर यू देयर? और जब आप हाँ का जवाब लाते हैं, ये प्रश्न और हाँ वाले जवाब के बीच में जो गैप है, अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं 5 सेकंड वाला। मैं पूछूंगा ये प्रश्न और 5 सेकंड के बाद आप हाँ या ना में जवाब देना, हाथ ऊपर करके। ओके, 5 सेकंड के बाद, उसके पहले नहीं। तो मैं सभी से ये सवाल कर रहा हूं, अपने आप से भी, क्या आप हैं? आर यू देयर? यस, हाथ ऊपर करिए या यस टाइप करिए, वीडियो है तो, या अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। ओके, सो सभी का जवाब यही होगा, यस आई एम देयर, आई एम देयर। तो मेरा प्रश्न आपको ये है कि वो जो 5 सेकंड का जो गैप था, वहां उस 5 सेकंड में आप कहाँ गए थे? किसको पूछा आपने? क्या आपने आपके विचारों को पूछा? आपके आपके बैंक बैलेंस को चेक किया? या आपकी कोई डिग्री जो है उसको चेक किया? आपका आधार कार्ड चेक किया कि मैं हूं क्या, मेरा अस्तित्व है क्या? नहीं, ये सब नहीं चेक किया आपने। आप अपने आप तक पहुंच गए, आप अपने आप को एक छूकर 5 सेकंड में वापस आ गए। तो वो जिसको आपने छुआ, वही है आपका असली स्वरूप, असली जो आप है, वो इटर्नल। सो इट्स वेरी इजी। एनी टाइम यू आस्क, रिमाइंड योर सेल्फ, एम आई देयर? एंड यू आर देयर। यू आर बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड थॉट, बियॉन्ड पास्ट, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड, और बियॉन्ड टाइम भी, समय की भी हम बात करेंगे वन ऑफ दीज डेज। कि जो जहां जिस जगह को आपने देखा और छुआ और महसूस किया, अनुभव किया, उसमें ना अतीत है ना भविष्य। देयर इज ओनली यही, 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 अभी, नाउ, द इटर्नल नाउ। देयर इज नो टाइम, क्योंकि वो बदलता ही नहीं है। कि टाइम के प्रवाह के लिए आपको कोई भी चीज बदलती है तब पता चलता है कि ये समय गुजरा है। लेकिन आप जो असल में है, उसको कोई चेंज ही नहीं है, वही है, वही है, वही है। वो वस्तुओं को और अनुभवों को ग्रहण करता है, और अनुभव के जाने के बाद वही जैसे था वैसा ही, उसका स्वरूप वैसा का वैसा है। सो एनीवे, तो मैं आगे सोचता रहा कि ये सोनल जी जैसे और भी लोग होंगे जो और भी शॉर्टकट चाहिए। एक प्रश्न भी नहीं से भी नहीं खत्म होगी बात। तो मुझे याद आया, ये एक जो ये महावीर स्वामी भगवान की जो जो कथा कहानी मैं सुना रहा हूँ, वही मुझे याद आ गई। तो मैं पहले वो कहानी बताता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये और भी शॉर्टकट क्या है। तो ये जो चंडकोशी जो नाग था, उसके इलाके से महावीर स्वामी भी जाने वाले थे, उसी फॉरेस्ट में से। तो सभी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप किसी और रास्ते से जाइए, ये तो यहाँ तो चंडकोशिया रहता है, वो आपको अगर मिल गया तो वो तो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे आप जो भी है। तो आप वहां से मत जाना, आप कहीं और से जाना। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे मुझे तो वही यही रास्ता से जाना है, यही रास्ता ठीक है, और मैं ठीक हूँ। तो वो गए उस रास्ते से।
तो वर्ड्स क्या है? चंड कोशिना झेर उतारी एने लिधो उगारी। उगारी यानी उसको तार लिया, उसको भी पार, उसका भी बेड़ा पार करवा लिया, उसके जहर को उतार कर। तो हुआ ये कि हम उसी इलाके से गए और जैसे कहा था लोगों ने, दिस नाग सामने आ जाता है और वो तो कुछ सोचता नहीं है, समझता नहीं है कुछ, जो भी सामने आया उसको तो बस मारना है, काटना है, बस वही उसका धर्म था। तो immediately he dug his teeth into the feet of महावीर भगवान एंड नॉर्मली खून निकलता है, तो खून निकला नहीं, तो और भी मारा और भी मारा और सारा जहर निकल गया उसका, और मारते गया जहर निकल गया और खून की जगह पे वहां से पैरों से दूध की धारा शुरू हो गई। अभी ये सिंबलिक होता है, सिंबल होता है, सब कुछ सिंबॉलिक होता है। सिंबल यानी एक प्रतीक है, लिटरली शायद नहीं होगा या होगा, आई डोंट नो, बट द सिंबलिज्म इज दैट इट वाज अ रिवर ऑफ लव, अ रिवर ऑफ कंपैशन। कि इतना ये प्राणी इतना इतना हिंसक और गुस्से गुस्से से भरा हुआ प्राणी है, फिर भी उनसे सिर्फ करुणा, फॉरगिविंग, प्रेम का ही प्रवाह हुआ। तो वो दूध कहते हैं या जो भी है। तो ये नाग जो है पहली बार ऊपर देखता है कि ये कौन है, ये जो मुझे जो जिसकी जान तो जाने की बात दूर तक, इनके शरीर को कुछ हो ही नहीं रहा है और ये प्रेम की धारा बह रही है उनसे। तो महावीर स्वामी ने उससे सिर्फ यही शब्द कहे कि बुझ चंडी के बुझ। बुझ यानी याद कर, समझ। तो चंड कोशिया जो था वो उसके अगले जन्म में, पिछले मतलब उसके पहले के जन्म में वो भी एक साधु था और बहुत तपस्या की थी, लेकिन उनमें एक गुण क्वालिटी थी कि उनको गुस्सा बहुत आ जाता था। ये एक उसी से की वजह से उनका जो मोक्ष या निर्वाण या ब्लिस या जो भी स्टेट है, एनलाइटनमेंट, वो नहीं हो रहा था। तो एक दिन किसी उनके स्टूडेंट ने उनको कुछ छेड़ा या कुछ कहा जो उनको पसंद नहीं आया, और वो दौड़ के अहंकार और गुस्सा, तो उनके पीछे वो दौड़े और बहुत गुस्से में थे और उसको, स्टूडेंट को पकड़ के उसने ठीक से पीटना था, लेकिन वो पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते एक छोटा सा दरवाजा आ गया और उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा थी, तो सीधा सर टकरा गया और वहीं के वहीं उनकी जान निकल गई। इस उसी गुस्से वाली अवस्था में जान निकल गई। और उसी गुस्से भरे कर्म जो थे आखिरी समय में उनकी जीवन के, तो वही गुण को लेकर दूसरा जन्म उनका जो हुआ वो हुआ एक नाग, बड़ा गुस्से वाला नाग बनकर वो आ गए। तो महावीर स्वामी उसको कहते हैं बुझ चंडी के बुझ, यानी याद कर कि तू कौन है। यही सबसे बड़ा प्रश्न है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है, तू याद कर कि तू कौन है। और वही उसको ये पहली बार ये जहर सब निकल गया था और ये प्रेम की धारा, और कोई उनसे प्यार से प्रेम से बात कर रहा है। जस्ट लाइक द प्रिंसेस kissing the toad, princess kissing the frog in that fairy tale. This was a human being kissing this angry, vicious, violent snake. उसको प्यार से किसी ने आज तक बात नहीं की थी। तो प्यार से जब उन्होंने कहा कि बुझ चंडी के बुझ, बस इतना ही कहा, याद कर ले तू कौन है। एंड इमीडिएटली जाति स्मरण कहते हैं इसको, जाति स्मरण यानी अपने आप की स्मृति कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं असल में। मैं ये नाग नहीं हूं, ये मैं शरीर नहीं हूं, ये जहर मेरा नहीं है। मेरा असली स्वरूप है वो अमर, वननेस, डिवाइन, सोल, बीइंग, ऑल दैट। तो ये जाति स्मरण हो गया
चंड कोशिका को, और instantly he attained the enlightenment and moksha, and that right then and there. So ये है तीसरा शॉर्टकट, जाति स्मरण। अभी जाति स्मरण कराना किसी को, उसके लिए एक बहुत महान आत्मा की जरूरत है। मैं यहाँ सेकंड स्टेप तक ला सकता हूँ आपको। मैं आपको पूछ लेता हूँ कि भाई, कि आप हो क्या, और वो मैं हूं क्या, वो प्रश्न को लेकर आप अपने आप को याद कर सकते हैं। लेकिन ऐसे होंगे महापुरुष संत, हो सकता है। मतलब ये इट इज पॉसिबल। सो सोनल जी, दिस वुड बी द शॉर्टेस्ट कट। ऐसा कोई संत अगर मिल जाए आपको, जो आपकी आंखों में देखकर सिर्फ इतना ही कहे, सोनल जी याद करिए कि आप कौन हो, बस। या वो भी नहीं, शब्द भी नहीं, आपसे बस आंखें देखकर देखे, और वो आंखों को देखते ही आपको याद आ जाए कि अरे मैं क्या सोचता था, क्या कर रहा हूं मैं ये लाइफ में, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। सो दैट इज द shortest cut that I can think of. So I bless everyone to find that person, that soul, that being, जिससे आपको भी जाति स्मरण हो जाए। जाति स्मरण होना, that is enlightenment. और आखिर में देखिए, आखिर में कोई भी ऐसे व्यक्ति या ऐसी महापुरुष या महास्त्री मिल जाए आपको, फिर भी मैं ये कहता हूं कि आखिर में वो जाति स्मरण आप अपने आप को दिलाते हैं। हो सकता है उनकी शक्ति से, उनके पावर से आप हिल जाते हो, आपकी जो इस जन्म की जो गांठें हैं वो हिल जाती है उसकी वजह से, और निकल जाती है। लेकिन एंड में लास्ट स्टेप ऑफ दैट रिमेंबरिंग, आई एम नॉट दिस, माय रियल होम, माय रियल ट्रूथ, माय फाइनल ट्रूथ, which is before this body and will be there during this body and will be there after this body, that is my real truth. वो याद, वो जाति स्मरण is only yours. यानी yours भी हम कहते हैं एक लेवल से। अल्टीमेटली जो वननेस है, जो एक सोर्स है, वो जागृत होकर उसके ग्रेस से, उसके अपने ही ग्रेस को क्या कहते हैं पांडे जी, ग्रेस, आशीर्वाद इज सॉर्ट ऑफ चलता है, ब्लेसिंग है एक्चुअली, उसके ही आई विल फाइंड द वर्ड, मे बी गूगल ट्रांसलेट कैन डू इट, बट उसी की कृपा उस वही कृपा से, अनुग्रह से, या कृपा से, करेक्ट, अनुग्रह और कृपा से, जब वननेस, जो डिवाइन, जो मैं हूं, जो हम है, जब उस वननेस की कृपा अपने आप पर इस रूप में हो जाती है, पुरुषोत्तम नाम कहो या जो भी हम है, या जो भी कोई भी है, उस संकुचित जो प्राण है, जो व्यक्ति है, उसको खुद को, वननेस को खुद को अपने आप के ऊपर कृपा के वजह से, ये कृपा की धारा बहती है, तभी अपने को खुद को याद आ जाता है कि मैं खुद मैं हूं, मैं जो हम है वही मैं हूं। तो लास्ट स्टेज इज नॉट इन anyone's hand. It is only in the hand of the divine, which is I myself, we are self. But how, when, who, we don't know.
All we can do is be ready. All we can do is be prepared. All we can do is be prepared with our mind, with our body, with our hearts. को लेकर हम तैयार हैं, ताकि जब भी ये वर्षा हो, जब भी ये हो, तभी हम मौजूद है, रेडी है. That is all you and I can do in this form. In the form of oneness, जो हम है, there is nothing to do anyway. I am already that. You understand? So it's a play between those. But that is the, so finally it is only you. तो कोई किसी भी बहाने से, किसी भी कृपा से, किसी भी बहाने से ये अपने को एस्टैब्लिश हो जाता है. और ये एक पल में हो सकता है, एक मतलब एक क्षण आ जाता है जहां ये ऐसे ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है. दैट इज पॉसिबल. और ये ऐसे भी हो सकता है कि आहिस्ता 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 कुछ कुछ थोड़ा सा हमें अनुभव होने लगता है, और हम आखिर में हम जाकर उस बात को हम बिल्कुल गहराई से समझ जाते हैं. तो ये भी मत सोचना कि ओ मैं जो कोई ऐसे धड़ाकेदार धमाकेदार कोई बत्तियां नहीं जली अभी तक, so I am not enlightened. It is not like that. It can happen any moment and it can happen very slowly, very subtly. आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब बदल गए. Great. So what time? Let's see. Wow. Okay, already almost. So अभी I have one exciting news to share with you. कि एक म्यूजिक वीडियो जो क्रिएट किया है वो हम इस सैटरडे को लॉन्च कर रहे हैं. दिस सैटरडे एट 9 वी आर लॉन्चिंग दिस वीडियो. और सभी everyone is invited. Of course, we will send you the links and all that. लेकिन जो ये प्रमोशनल वीडियो है मैं अभी प्ले करता हूँ, वो शायद थोड़ा सा मतलब जूम पे इतना स्मूथ चलेगा या नहीं देख लेंगे. बट हाँ, अरुण जी का प्रश्न है वो हम देखते हैं बाद में अगर समय मिला, वरना थर्सडे को याद कराना अरुण जी मुझे पक्का. और क्योंकि अभी वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ द टाइम फॉर टुडे. तो तो मैं ये शेयर करता हूँ वीडियो, और हम ये ओपन डोर में वगैरह ये पोस्ट करेंगे पूरा लिंक और ये डिटेल्स वगैरह वगैरह. और I am asking everyone to spread this message when it comes on Open Door to as many people as you know all over the world. मतलब don't restrict yourself to friends in India and relatives in India. आपको दुबई में कोई जानता है, आपको कोई अफ्रीका में जानता है, आपको कोई अमेरिका में जानता है, सभी को ये भेजना है. And let us have a massive launch on Saturday at 9. So I'm going to share the screen and share the video with everyone. And great. And then we will come back. So you're able to see the screen? Yes. Okay. Okay, here we go. Ready, set. I wanted to see if we can take sounds that we can all relate to, baby sounds, and see if we make a song out of it and a story as well. Okay, so why this still has the old this old Zoom ID and all? Okay, anyway, I don't know. Okay, ये Zoom ID अलग होगा. I thought we changed the Zoom ID, but it's not. It's still the same old ID. Okay, anyway,
So as I said, it is playing a little jerky, and I think thoda sa modify karenge isko. The sound also needs to be sound. We can keep the smooth sound. We will do that before we send it out. So the whole video is बेबी की आवाज को लेकर ये गीत बनाया है. इसमें कोई शब्द है ही नहीं. पूरे सॉन्ग में कोई लिरिक्स ही नहीं है. ओनली बेबी साउंड्स. एंड क्योंकि बेबी साउंड जो है वो यूनिवर्सल है, उसको ना कोई मजहब है, ना कोई देश है, ना कोई भाषा है, तो ये यूनिवर्सल साउंड को लेकर ये वीडियो बना है. तो so we will launch it on Saturday. You will receive a link and all that soon, maybe today or tomorrow at the latest, and then you can join the group and be at the launch. Let's have many people. Let's break my Zoom account on that day, on Saturday. And we'll also, of course, have a live YouTube link also, so that more than Zoom, they can just be on the YouTube. Only thing is YouTube is it's one way, not two way. So everyone who within the first 100 can be here. I think it's still 100 only. We will check that also. Maybe we can use somebody else's account which has more. We will see. But any thoughts or reactions to this promo video that you all saw? Looks beautiful. Okay, wonderful. Jigna ji, okay, thank you. It looks wonderful. Or Himanshu. Amazing. Okay, great. super Chandrakant ji. super duper, super. Okay, great. great. Excitement बढ़ गया है. हाँ sir. Can't wait till Saturday. Can't wait till Saturday. I missed because I got a call. We'll join on Saturday. Meera ji. Okay, fine. So, Okay, yeah, Saturday excitement is coming. So at 9 o'clock Saturday, sab log free rehna. So open door we'll have as normal 8 to 9 or 8:45. And then 9 we will switch over to the